Good afternoon. Good afternoon. Good afternoon. So, how are you today? I'm good. Sorry I couldn't join yesterday. That's okay. But I did the session शाम रात को. I saw the recording. जो सुबह thank you वाला था, like the morning routine. So I did it. I followed it as well. I was actually just writing down अभी जैसे जैसे a couple of things I had noticed. 1 second, ma'am. Yeah. Yes. So अभी Saturday को we had done the session where we had to just uh, magic dust everyone Yes. was the session that we did on Saturday. So that night itself, I was going out for dinner with a friend. So of course, going out for a dinner means that one outing, there are many people helping us all around. And Mm. coincidentally, that day there was some issue with the filter. So someone had come to repair that as well. So I had it in the back of my mind, and I do generally end up saying thank you, but that eye contact or maybe very heartfeltly वो नहीं हो पाता. So that was something that I did keep a track on. I was able to do that. Then I was driving myself. So then you had mentioned this example also that to just take sort of shower magic dust. आपने एक ड्राइविंग का एग्जांपल दिया था स्पेसिफिकली. Yes. So that I did. What else? Then अभी the money note वाला thing I've been following जो Very आपने बोला nice. palms में that then this one friend of mine abhi 2 days back she was just talking about another friend and not like talking ill about that friend, and this has happened earlier also, and then maybe I have also been a part of that conversation, but last 2 times, and I have not only just not spoken ill, but I've also told her that just let it go and like it's okay. So didn't really encourage her also too much to talk about it. uh so yeah, couple of these things, and I don't Yes. remember where exactly, but Abhi, one of these things only, something related to this whole gratitude thing came in my dreams also. Oh, I wow. Very feel nice. vaguely, हाँ, so yes. So that मतलब इसका मतलब है कि यूनिवर्स भी आपको कहीं ना कहीं सिग्नल दे रहे हैं कि यस यू नीड इट इन योर लाइफ एंड यू शुड फॉलो इट इन योर लाइफ एंड दिस इज द राइट टाइम फॉर यू. Yes. Okay. Acha, another thing I would like to tell you is कि suppose somebody is gossiping and you don't like it, and there are times when you just can't tell them. कई बार बड़े भी होते हैं जो करते हैं. हाँ, जैसे घर में बैठे हैं तो मम्मी अगर कोई स्टाफ के लिए बोल रही है कि कोई काम नहीं करता ये ऐसे, तो आप उनको तो नहीं बोल सकते हैं, ठीक है. until unless you have a very good relationship आप उनको बोल भी दो कि मम्मी रहने दीजिए, जाने दीजिए, बट कई बार होता है ना कि हम उनको नहीं बोल पाते. तो क्या करेंगे? यू विल जस्ट टेल देम दैट आई हैव अ कॉल टू मेक, आई हैव टू यूज द वॉशरूम. जो भी कुछ करके वहां से उठ जाइए. Because until and unless you remove yourself from that situation, you become a part of that situation. ठीक है, तो वो हमको करना नहीं है. तो हम लोग इस तरह भी कर सकते हैं. आई हैव टू थिंग्स टू टेल. एक तो कल किसी ने मैसेज भेजा था हमारे व्हाट्सएप ग्रुप में, कोई नेगेटिव सा मैसेज था. उस तरह के मैसेज हम नहीं भेजेंगे. एनी काइंड ऑफ अ नेगेटिव मैसेज कि कोई बीमार है, उसकी बीमारी का क्या नाम है वो सब नहीं लिखेंगे. या जैसे दिस मैसेज वाज, आई डोंट नो कितनों ने पढ़ा है, बट इट वाज अ नेगेटिव मैसेज एंड आई I डोंट think वांट टू. was it something about a child यस. missing? सो डू नॉट से इट. इट वाज देखो आपको भी याद है अब. Why? Because we tend to focus on that. अगर हमको ग्रुप में कोई मैसेज भेजना है अपने बच्चों के लिए, अपने स्पाउस के लिए, अपने फ्रेंड्स के लिए, खुद के लिए, कुछ अच्छी बातें लिखिए, कोई गुड न्यूज लिखिए. अरे वाह, मेरा बच्चा आज कोई कंपटीशन में फर्स्ट आया, सेकंड आया, वो लिखो. वो पार्टिसिपेट कर रहा है, वो भी लिखो. दैट इज अ गुड न्यूज. वो लिखो. मैं आज शॉपिंग पे गई हूँ, मुझे मेरे पसंद की चीज मिली, मेरे को डिस्काउंट मिला, वो लिखो.
मेरे लाइफ में मनी मैजिक हुआ, मेरे रिलेशनशिप्स बहुत अच्छे चल रहे हैं, वो लिखो। आज मेरे हस्बैंड ने मेरे को गिफ्ट दिया अनएक्सपेक्टेडली, वो लिखो। वेरी इंपॉर्टेंट, बिकॉज आप देखिए, आप जो चीज ग्रुप में डाल रहे हैं, देर आर अबाउट 50 ऑड मेंबर्स इन द ग्रुप, तो सबके सब वो पढ़ रहे हैं, सब उस चीज को, उस चीज के बारे में सोच रहे हैं। ओके। तो अगर कोई नेगेटिव मैसेज है तो हम क्या कर रहे हैं, अरे देखो आजकल जमाना कैसा आ गया है, क्या क्या हो रहा है, वो बच्चा कहाँ चला गया होगा, मतलब थिंग्स लाइक दैट, वी टेंड टू थिंक, एंड हम उस पे फोकस कर रहे हैं। एंड इमेजिन 50 पीपल, एंड शी हैज नॉट जस्ट मेंशन्ड इन दिस वन ग्रुप, दैट इज व्हाट आई एम अज्यूमिंग। ओके, तो उन्होंने और भी बहुत ग्रुप्स में भेजे होंगे या अपने रिलेटिव्स को भेजे होंगे, उनका मतलब उनका इंटेंशन गलत नहीं है, बिकॉज उनको तो यही था ना कि भाई कहीं से भी कोई भी इंफॉर्मेशन आ जाए, द इंटेंशन इज नॉट रॉन्ग। बट when you're sending a message in this mass forum, what happens is so many people are focusing on it and वो negative vibe जा रही है। ओके, तो सेंड गुड न्यूज, आई कीप वेटिंग कि कोई तो भेजेगा, कोई कोई के लाइफ में कोई मैजिक आ रहा है, कुछ हो रहा है, एवरीबडी इज प्रैक्टिसिंग, कुछ तो भेजो, कुछ अच्छा हो रहा है। अभी नव्या है शेयर्ड, तो अच्छा लगता है ना सुन के, कुछ भी होता है अगर आप प्रैक्टिस कर रहे हैं, वो लिखिए कि मैं प्रैक्टिस कर रही हूँ, और लोगों को मोटिवेशन मिलता है, और लोगों की गुड वाइब्स आती हैं। क्यों हम लोग हमेशा, अरे मेरा बच्चा बीमार है या मेरा सो एंड सो बीमार है, प्लीज उसको मैजिक डस्ट कर दो। जरूर करेंगे, बट आप उसके साथ साथ पॉजिटिव मैसेजेस भी तो भेज सकते हैं ना। आज अरे वाह मेरे बच्चे की शादी है, उसको ब्लेसिंग्स दीजिए। वाई डोंट वी सेंड दैट? कि तो सो मेनी पीपल आर गोइंग टू ब्लेस दैट चाइल्ड। अरे इसकी शादी है, वाह सच गुड न्यूज, उसको ब्लेस करो। Okay, this is one thing which I wanted to say. Another thing I wanted to tell Anshu आंटी, she is not here, अगर वो आ जाएंगी तो उनको वापस बोलूंगी। कहीं भी आप कोई भी ग्रुप में हैं, कहीं से अगर मैजिक बुक, पावर बुक, आप कोई और भी क्लास कर रहे हैं, जरूर करिए। यहाँ पे आप जरूर भेजिए कि ऐसा ऐसे सो एंड सो क्लास है, पर आप व्हाट्सएप ग्रुप का मैसेज भेजिए, आप उसका जूम लिंक मत भेजिए। व्हाट हैपेंस इज व्हेन यू सेंड द जूम लिंक, तो बहुत लोग ये वाली क्लास के जूम लिंक से कंफ्यूज हो जाते हैं फिर। ओके, सो इफ शी जॉइन्स आई विल डेफिनेटली टेल हर, बट in case anybody else has this intention, it is just a suggestion, please understand that. So yes, how was yesterday's practice, Meenakshi ji? How was yesterday's practice? Yeah, I did it. जी, In morning, I completed my session with a recorded video, and I did my work also. तो वो तो उठने के बाद आपने सुना होगा, तो फिर मैजिक मॉर्निंग वाला तो नहीं हुआ होगा। नहीं, वो बाय चांस मैंने मतलब मैं पहले से ही थैंक यू से ही स्टार्ट करती हूँ। मतलब हाँ मैं अपनी आईज भी बाद में ओपन करती हूँ, उससे पहले मतलब मेरा मतलब वो ग्रेटिट्यूड शुरू हो जाता है, क्योंकि मैं पहले से ही एक प्रेयर करती थी। मतलब राजेश्वरी मोदी के थ्रू जैसे मैं उनकी एक प्रेयर करती हूँ कि सभी को धन्यवाद करते हुए ही स्टार्ट करती हूँ। जी, जी, तो वो प्रेयर मैं पहले मॉर्निंग में बोलती ही हूँ। उसके बाद मुझे जो जो याद आता रहता है मैं सबको ब्लेसिंग्स भेजने की कोशिश करती हूँ, जो भी मुझे ध्यान आ जाता है कि मुझे उसको देनी है, उसको देनी है। तो वेरी वैसे नाइस। ही देने तो की कोशिश। एक्चुअली फिर आपने जब सेशन सुना, तो उसके बाद हर उस चीज के लिए जो ग्रैटिट्यूड करना था, जो हम छू रहे हैं या यूज कर रहे हैं या देख रहे हैं, तो वो मैंने आपने मॉर्निंग किया। मैंने मॉर्निंग में 6 o'clock ही ये सेशन चला लिया था। वंडरफुल। आज मैं जल्दी उठी थी, तो उस वजह से मैंने मॉर्निंग में ही जैसे मतलब एक मुझे पहले से थोड़ी थोड़ी हैबिट थी, तो थोड़ी और इंक्रीज हो रही है मुझे से, मतलब वापस पावर मिल रही है कि और ज्यादा मोटिवेशन मिल रहा है कि जहां मेरे से चीजें छूट रही थी यस। ना, अभी नई चीजें आ रही हैं। मतलब इवन अभी रोड पे चलते हुए मुझे तारों का खंबा दिख रहा है, तो मुझे लग रहा है ये पोल को भी मतलब थैंक यू बोलूं। वायर्स को आज तक नहीं बोला कभी, तो मतलब वो चीजें मुझे कनेक्ट कर रही हूँ अभी मैं उनको और ज्यादा, मतलब अभी तक मेन मेन चीजों को कर रही थी, अभी मतलब और डीप में जाना शुरू और किया, डेप्थ क्योंकि समझ मुझे में आ रहा है कि कहाँ कहाँ मैं कर समझ में आ रही सकते है, हैं। जैसे कि आज शैम्पू की मतलब वो शैम्पू सोप उन सबको भी किया जी, जो शायद आज तक नहीं किया।
जी। राइट। जैसे टूथपेस्ट कई बार होता है नो, कोई कोई चीज, अरे ये सोप डिस्पेंसर को तो कभी बोला ही नहीं थैंक यू। सच में नहीं बोला। बाथरूम में शेल्फ लगा हुआ है जहां टॉवल्स रखे हुए हैं, उस शेल्फ को तो कभी बोला ही नहीं थैंक यू। तो आप बोलेंगे अरे इन एनिमेट ऑब्जेक्ट्स को जो सुन नहीं सकते, जो समझ नहीं सकते, उनको क्यों थैंक यू बोलना है? क्योंकि हर चीज एनर्जी है। हर चीज एनर्जी है, तो हम जितना वो पॉजिटिव एनर्जी दे रहे हैं उतनी ही पॉजिटिव एनर्जी घूम के आएगी। बिल्कुल आती है। मैं एक प्रैक्टिकल एग्जांपल अपना वैसे पहले से ही जो मेरे साथ हुआ है, मैं क्योंकि मैं पहले से मानती हूँ इस चीज को। जी। तो अभी 3-4 मंथ्स बैक मतलब मैंने कारपेंटर से अपना डोर का थोड़ा हैंडल ब्रेक डाउन हो गया था, तो उसको रिपेयर करवाया, तो एक पीस शायद कोई नीचे गिर गया और कहीं इधर उधर हो गया किसी के पैर के साथ। तो मेरे बेटे ने क्या किया, उसके पैर में बाई चांस थोड़ा वो टच हुआ, उसने उसको जैसे होता है ना किक किया, और वो कहीं, मैंने उसको बोला कि नहीं किक नहीं करो, उठा दो। उसने किक से जैसे प्ले करते हैं ना बच्चे, बोलते क्या है ये मेरे पैर में लग गया, तो ऐसे उठा के उसने वापस उसको किक कर दिया, जहां गया तो गया। तो शाम में क्या हुआ, जब वो खोल रहा था तो उसी को लगा, पूरा दिन सब लोग घूमे, किसी को डोर नहीं लगा, वो पीस नहीं लगा, उसी को खुद को जी। लगा। फिर मैंने उसको समझाया कि बेटा आपने उसको बैड एनर्जी दी, तो मतलब वो चीज आप ही को आकर चोट पहुंचाई। देखो सारे लोग यहाँ घूमे, किसी को नहीं लगा ना वो, जी। आपने उसको सॉरी बोलने की बजाय आपने उसके अगेन किक किया, तो मतलब आपको आप ही को चोट लगती है। तो इवन मतलब एक और छोटा सा एग्जांपल है कि मेरे बेड के कॉर्नर्स बने हुए हैं, तो उसको ना हमेशा लगते हैं वो, हम लोग वहीं घूमते हैं, हमारा रूम है, तो वो उसको जब भी आता है वो रूम में ना पक्का लगता है। तो बोलेगा ये क्यों बनवाए मम्मा, क्या है ये, बेकार चीज बनाई हुई है, वो एकदम जैसे होता है ना फिर से किक कर देता है। तो 100% उसको लगता है, तो मैं उसको रोज समझाने की कोशिश कर रही हूँ कि बेटा ये एनर्जी है, जी। एक्सचेंज होती है, आप जो करोगे वो मिलेगा। अभी वो मेरे ये- कॉन्सेप्ट को समझ नहीं पा रहा। और ये ना आप कई चीजों में देखेंगे, कई चीजों में देखेंगे कि आप जैसा दे रहे हैं, कोई भी चीज हो, इंसान हो या कोई चीज हो, कोई सर्कमस्टेंस हो, आप जो देंगे वो ही मिलेगा। अच्छा देंगे तो कुछ ना कुछ अच्छा ही होगा, नहीं देंगे तो वो अच्छा नहीं होगा। सही है। यस। सो हाउ वाज एवरीबडी एल्सेस प्रैक्टिस? अंशु जी, अंशु आंटी सुनिए, एक तो ना गीतिका जी का जूम लिंक सेशन में मत भेजिए, व्हाट्सएप ग्रुप में आप व्हाट्सएप जी लिंक मैडम। भेजिए। ठीक है, क्योंकि बहुत लोग क्या होता है ना, फिर जी जूम मैडम। लिंक कंफ्यूज हो जाते हैं। ठीक है ना? तो आप उनको व्हाट्सएप ग्रुप का लिंक भेज दीजिए ज्वाइन करने के लिए, बट आप जूम लिंक मत भेजिए, जी नहीं मैडम। तो इस ग्रुप से फिर कंफ्यूज हो जाते हैं। ठीक है ना? ओके, और कल की प्रैक्टिस कर ली आपने आज सुबह? बोलिए, कि टाइम नहीं मिला आपको? आवाज में ब्रेकडाउन आ रहा है। आवाज में ब्रेकडाउन आ रहा है, ओके, कोई बात नहीं, चलिए ठीक है। अब जी मैडम। जी मैडम जी। कर लिया था आज का थैंक यू प्रैक्टिस? मैडम, थैंक यू एडवाइस करने के लिए। यस, थैंक यू, थैंक यू सो मच। अच्छा, अभी टुमारो वी हैव द ड्रीम चैप्टर। ओके, थोड़ा सा लंबा चैप्टर होगा, थोड़ा टाइम ज्यादा लग सकता है। I will try and finish it, but we might go around 15-20 minutes. थोड़ा टाइम लग सकता है कल, तो आप उसी हिसाब से, and try not to miss the day tomorrow because it's a very very important chapter. इसीलिए ही हम लोग सब आए हैं इस सेशन में। आई थिंक वी हैव ऑल कम, हम लोगों को कुछ ना कुछ चाहिए अपनी जिंदगी को बेटर बनाने के लिए, उसीलिए हम लोग आए हैं। तो ट्राई नॉट टू मिस टुमारो सेशन। ओके, अब आज एक we will start with the dream, this, because we have a this thing smaller chapter, तो I think I can do this. ये देखिए, this is the feelings chart, ये मैंने व्हाट्सएप ग्रुप में भेजी थी। ये फीलिंग्स चार्ट है, इसमें हम देख सकते हैं, देखिए ये बीच में एक लाइन है, दिख रहा है सबको? जी। जी, ये लाइन है। अब इसके ऊपर के जितने वर्ड्स हैं, सेटिस्फैक्शन, होप, एंथुजियाज्म, एक्साइटमेंट, पैशन, जॉय, ग्रैटिट्यूड, लव, ये सब लिखा हुआ है वाइट से, और उसके ऊपर एक बहुत रोशन बॉल सा बना हुआ है। ओके,
अब लाइन के नीचे अगर हम जाएं, बोर्डम, इरिटेशन, डिसअपॉइंटमेंट, वरी, क्रिटिसिज्म, एंगर, हेट, एनवी, गिल्ट, डिस्पेयर एंड फियर, ये जितने भी हैं ये सब डार्क कलर से लिखे हुए हैं। ये हमारी जिंदगी में अंधेरा लेकर आते हैं। ओके। एंड जब हम और नीचे 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 जाते जाते हैं, देखिए हम एकदम डार्कनेस में पहुंच जाते हैं, एकदम ब्लैक बॉल है। ठीक है ना? तो ये जो लाइन के ऊपर की जितनी फीलिंग्स हैं ये हमेशा आपको लाइट में रखती हैं, रोशन रखती हैं, आपको पॉजिटिव रखती हैं। दीज आर ऑल पॉजिटिव फीलिंग्स। यहाँ आप देखेंगे फीलिंग्स लाइक हैप्पीनेस एंड सैडनेस आर नॉट देयर, बिकॉज इनमें से कोई भी फीलिंग है, लाइन के ऊपर की जो भी फीलिंग है वो आपको हैप्पीनेस देती है। दे ऑल डिनोट हैप्पीनेस। एंड नीचे का जितना भी फीलिंग्स लिखा हुआ है दे आर ऑल डिनोटिंग सैडनेस, वो आपको कहीं ना कहीं सैड बनाते हैं। ठीक है? दे आर नेगेटिव फीलिंग्स, ऊपर वाली सब पॉजिटिव फीलिंग्स है। अब सेटिस्फैक्शन इज द बेस ऑफ द पॉजिटिव फीलिंग। सेटिस्फैक्शन से हमको होप है, फिर एंथुजियाज्म, एक्साइटमेंट। आपके लाइफ में ये वाली फीलिंग्स जितनी ज्यादा होंगी उतना आप अपने लाइफ में और पॉजिटिविटी अट्रैक्ट करेंगे। अब देखिए, लव जो ये है ना, ये वो हमारा रोमांटिक वाला लव नहीं है जो हम अपने पार्टनर को, बॉयफ्रेंड, गर्लफ्रेंड, हस्बैंड, वाइफ, बच्चों को बोलते हैं। ये वो वाला लव नहीं है। एनीथिंग दैट यू गिव पॉजिटिव फीलिंग टू, जैसे आपको पेंटिंग करना बहुत अच्छा लगता है, हाँ, तो आप उसको लव दे रहे हैं। जो भी चीज करने में आपको बहुत मजा आता है, जो करना आपको बहुत अच्छा लगता है, उसको आप लव देते हैं। तभी तो आप उसको करते हैं ना, बिकॉज यू लव दैट थिंग। है कि नहीं है? कहीं ना कई बार हम लोग बोलते हैं कि ना हम लोगों को ये करना अच्छा नहीं लगता, तो क्योंकि हमको वो पसंद नहीं है। हमको वो पसंद नहीं है, हम उसको कोई फीलिंग, कोई पॉजिटिव फीलिंग नहीं देते हैं, इसलिए वो हमको अच्छा नहीं लगता। ठीक है? तो लव जो हम दे रहे हैं दैट इज द सुप्रीम फीलिंग। एंड कोई भी चीज को जब हम वो फीलिंग देते हैं तब हमारे लाइफ में हम बहुत ज्यादा रोशनी को अट्रैक्ट करते हैं। ठीक है? उस एरिया में हम, बिकॉज अगर आप देखिए, आपको गाना सुनना बहुत अच्छा लगता है, हाँ, सपोज आपको मोहम्मद रफी के गाने सुनने बहुत अच्छे लगते हैं, या मे बी आपको अरिजीत सिंह के गाने सुनने बहुत अच्छे लगते हैं, तो आप उसको लव दे रहे हैं। तो वो आपको रिटर्न में क्या दे रहा है? वो आपको और खुशी दे रहा है, और पॉजिटिविटी दे रहा है। ग्रैटिट्यूड देखिए हमारी सेकंड फीलिंग है, मतलब इट इज जस्ट पॉजिटिव फीलिंग्स में वो लव के ठीक नीचे है। इसका मतलब है कि जब आप अपने आप को ग्रैटिट्यूड में रखते हैं तब आप बहुत जल्दी, अगर आप नेगेटिव हैं, कोई आपका नेगेटिव सिचुएशन है, आप बहुत लो फील कर रहे हैं, अगर आप वही ग्रैटिट्यूड करना शुरू कर देते हैं, आप बहुत जल्दी अपने आप को पॉजिटिविटी में ला सकते हैं। इसमें इतनी पावर, इतनी एनर्जी है इस फीलिंग में। ठीक है? और नीचे तो बोर्डम, आप बोलेंगे बोर्डम कैसे नेगेटिव फीलिंग हो सकता है? ये हमने बात करी है पहले। बट बोर्डम क्या होता है? जब आपके पास कुछ करने को नहीं है, आप बोर हो रहे हैं। बोर हो रहे हैं मतलब कि आपका दिमाग खाली है, खाली दिमाग शैतान का घर, वहां पे कुछ नहीं आता। जब देख लीजिए आप खाली बैठे होते हैं ना, आप या तो किसी के बारे में नेगेटिव सोच रहे होते हैं, या आपको लगता है किसी ने आपको दुख पहुंचा दिया है, किसी ने आपको चोट पहुंचा दी, आपको किसी के प्रति गुस्सा आने लग जाता है। जब आप खाली बैठे होंगे तब आप कोई अच्छी बात नहीं सोचते हैं, आप कुछ ना कुछ नेगेटिव सोचते हैं, until and unless you train your mind to think positive। तो बोर्डम जो है उससे शुरुआत होती है हमारी नेगेटिव फीलिंग्स की। ठीक है? एंड फिर वो हम नीचे नीचे जाते जाते हैं, इरिटेशन, डिसअपॉइंटमेंट, वरी, क्रिटिसिज्म, एंगर, हेट, अब एनवी, गिल्ट,
गिल्ट, अरे मैंने तो ऐसा नहीं किया, मेरे को ऐसा करना चाहिए था, या किसी को, उसको मेरे कारण चोट लग गई। आप बोलेंगे ये कैसे नेगेटिव फीलिंग हुआ? क्योंकि आप अपने प्रति नेगेटिव हो रहे हैं। वो भी एक नेगेटिव फीलिंग है। ठीक है, डिस्पेयर एंड फियर। ठीक है, तो ये आपको सब अंधेरे की तरफ लेके जाते हैं, एंड जो भी हमारे लाइन के ऊपर की फीलिंग्स है वो हमको रोशनी की तरफ लेके जाते हैं। ठीक है, सो ये अब हम, यस, नाउ दिस इज टुडेज चैप्टर, डे 12। हु इज गोइंग टू रीड टुडे? I will read. यस, डे 12, मैजिकल पीपल हु मेड अ डिफरेंस। जादुई लोग जिन्होंने फर्क डाला। हमारी जिंदगी में जो लोग फर्क लेकर आते हैं, ये उनके बारे में आज चैप्टर है। हम अपने लाइफ में बहुत तरह के लोगों को एनकाउंटर करते हैं, बहुत तरह को लोगों को मिलते हैं। कुछ लोगों को मिलके हम लोगों को कोई फीलिंग नहीं आती। हाँ, कोई लोग हम लोगों के बगल से गुजर जाते हैं, कोई फीलिंग नहीं आती। कोई लोग हम लोगों को बहुत पॉजिटिव वाइब भी दे के चले जाते हैं। मतलब आपको कई बार फील होगा, आप सड़क पे से जा रहे हैं, कोई इधर से आ रहा है, आप ना उनको घूम के वापस से देखते हैं, ये कौन गया, क्योंकि आपको उनसे कुछ ना कुछ पॉजिटिव या नेगेटिव एनर्जी मिली है। ठीक है, बहुत बार ऐसा होता है। तो हम अपने लाइफ में बहुत तरह के लोगों से मिलते हैं, हमारे फ्रेंड्स हैं, फैमिली है, अक्वेंटेंसेस हैं, बहुत तरह के लोग हैं। अब इनमें से कुछ लोग ऐसे होते हैं जो हमको नीचे की तरफ पुल करते हैं। बोलते हैं तुमसे ये काम नहीं हो सकता, तुम्हारे पास तो इतने पैसे ही नहीं है, अरे तुम तो हमेशा ही बीमार रहती हो, ऐसा क्यों होता है, तुम कोई अच्छी डॉक्टर को क्यों नहीं दिखाती, तुम क्यों हमेशा ऐसे रहती हो। हाँ? या कुछ लोग होंगे जो आपको बोलेंगे, अरे तुम क्यों फिक्र करते हो, मैं हूं ना तुम्हारे साथ, तुम बिल्कुल कर सकते हो। भगवान ने तुमको दो हाथ दिए हैं, दो पांव दिए हैं, इतना अच्छा दिमाग है, तुम ऐसा क्यों सोचते हो कि तुम नहीं कर सकते हो? तुम में बहुत काबिलियत है। अब ये बताइए, आपको कौन से ऐसे लोग हैं जो पॉजिटिव एनर्जी दे रहे हैं, या कौन ऐसे लोग हैं जो नेगेटिव एनर्जी दे रहे हैं? समझ में आ रहा है ना? आज हम उन लोगों के बारे में बात करेंगे जिन्होंने हमको अपलिफ्ट किया है, कहीं ना कहीं हमको सपोर्ट किया है, हमको हमारे लाइफ में कुछ जादू डाला है। ठीक है, आज हम उन लोगों के बारे में बात करेंगे। अभी तक हमने बहुत तरह के लोगों के बारे में बात करी, बहुत तरह की चीजों के बारे में बात करी जिनके प्रति हम ग्रेटफुल हो चुके हैं, बट आज हम उन लोगों के बारे में बात करेंगे जो हमारे लाइफ में पहले ही मैजिक्स लेकर आ चुके हैं। ठीक, इस पिक्चर को देखिए अगेन, ये कोई ड्राइंग रूम, लिविंग रूम टाइप का सीन हाँ, है जहां एल्बम रखा हुआ है। अ, कुछ नव्या कुछ बोल रहे हैं? I think we can still see the previous picture only. जो आपने moods ये वाला नहीं लगा। आया है मुंह इसको, एक, नहीं I think हाँ, मे बी आपको stop अब share ठीक है? करना। No, नहीं अभी भी नहीं आया। अभी भी नहीं आया? I वो think आप पहले एक बार stop करके वो खोल के फिर start कर दीजिए ओके, वापस। इसको मैं, अच्छा ओके, लेट मी जस्ट डू दैट। यस, यस। अभी आ रहा है ना, बट ये आज छोटा हो गया है।
कैसे कैसे हो गया आज? ये आज थोड़ा सा कुछ गड़बड़ हो गया हमारे स्क्रीन में। वेट। गिव मी अ मिनट, आई विल डू इट। अब आ जाएगा। यस। यस। ये कोई लिविंग रूम का सीन है। इसमें अगेन देखिए एल्बम है, कुछ कुछ फोटोज हैं जिनको देख के आप खुश होते हैं या आपकी पुरानी मेमोरीज आती हैं। जनरली जब हम एल्बम्स देखते हैं, दे आर एल्बम्स ऑफ गुड मेमोरीज, पिक्चर्स ऑफ गुड मेमोरीज जो आपको पुरानी बातें याद दिलाती हैं, जो सोच के आप खुश होते हैं। तो अगेन यहाँ पे कुछ फोटोग्राफ्स हैं जिनके ऊपर बहुत मैजिक डस्ट किया हुआ है, और हम लोगों को वो उन बातों को याद करना है, उन लोगों को याद करना है जिन्होंने हमारे लाइफ में कुछ मैजिक्स लेकर आया या हमको अपलिफ्ट किया। ओके, सो प्लीज कंटिन्यू मीनाक्षी जी। जी। At times, our own light goes out and is rekindled by a spark from another person. Each one of us has cause to think with deep gratitude of those who have lighted the flame within us. Albert, uh, एल्बर्ट okay. श्वाइट्जर, नोबेल प्राइज विनिंग मेडिकल मिशनरी एंड फिलोसोफर, वो बोल रहे हैं, कई बार हमारे खुद की रोशनी चली जाती है और यह किसी दूसरे व्यक्ति की चिंगारी से दोबारा सुलग उठती है। हम में से हर व्यक्ति को उन लोगों के प्रति गहरी कृतज्ञता का भाव रखना चाहिए जिन्होंने हमारे भीतर की लौ को जलाया। कई बार क्या होता है ना, हम बहुत हताश हो जाते हैं, बहुत हताश हो जाते हैं। हमको सपोज बिजनेस में बहुत घाटा लग गया है, आप बहुत फाइनेंशियली आपके लाइफ में बहुत ब्रेकडाउन आ गया है, बैंक वैंक से कहीं से आपको लोन नहीं मिल रहा है कि आप अपने बिजनेस को वापस रिवाइव कर सकें। आप बहुत मायूस हो जाते हैं कि अब क्या होगा। सडनली आप कोई फ्रेंड से मिलते हैं, बहुत टाइम बाद किसी फ्रेंड से मिले एंड उन्होंने आपको पूछा कि क्या बात है, आज तुम बहुत उदास हो। तो आपने बोला कि अरे नहीं, ऐसे ऐसे हो गया, कुछ ऐसे सर्कमस्टेंसेस हैं कि बैंक से भी लोन नहीं मिल रहा। वो बोलते हैं, अरे क्यों फिक्र करते हो, मैं तुमको इतने साल से जानता हूँ, मैं हूं ना, तुम क्यों चिंता करते हो, आई विल गिव यू द लोन। एंड उन्होंने आपको पैसे दिए, आपका बिजनेस वापस चल पड़ा। एंड कहीं ना कहीं फिर हम अपने लाइफ में बिजी हो गए उनके प्रति। उस समय तो उनको ग्रैटिट्यूड किया, बट बाद में उनके बारे में भूल गए। ठीक है, या हो सकता है कोई डॉक्टर हो, जहाँ हर बहुत सारे डॉक्टरों ने ना आपको बहुत नेगेटिव कुछ न्यूज़ दिया हो। कोई एक डॉक्टर होता है, अरे कुछ नहीं, आप एकदम ठीक हैं, मैं हूं ना, आप क्यों चिंता करते हैं। ठीक है, या कभी कभी हो सकता है कोई फैमिली मेंबर हो, वो भी रहने दीजिए। बहुत बार होता है कि आप किसी को देख के, कोई माइथोलॉजिकल कैरेक्टर को देख के, या कोई फिल्म देख रहे हैं, कोई शो देख रहे हैं, उसमें कोई कैरेक्टर को देख के आपको इंस्पिरेशन मिल जाती है। तो कोई भी हो, आपके लाइफ में बहुत तरह के लोग आते हैं जिन्होंने कभी ना कभी आपकी मदद करी है, आपको अपलिफ्ट किया है। रोंडा बर्न बोल रही हैं कि आज हम लोगों को उन लोगों को ग्रैटिट्यूड करने की बहुत सख्त जरूरत है। ईच वन ऑफ अस हैज कॉज टू थिंक विद डीप ग्रैटिट्यूड
क्योंकि उन्होंने, जब हमारे अंदर अंधेरा हो जाता है, उन्होंने हमारी लौ को वापस जलाया है। इसलिए हमको उनको ग्रैटिट्यूड करना बहुत जरूरी है। अ, इसका क्या मतलब होता है? आवर ओन लाइट गोज आउट। लाइट ये नहीं कि हमारे कमरे की रोशनी बंद हो जाती है, वो वाला नहीं। हमारे अंदर जो रोशनी है, कोई होप नहीं रहता हमको, हमको कोई कोई तरफ से हमको कोई सल्यूशन नजर नहीं आता, उस समय कोई और आके हमको वो सल्यूशन, वो होप वापस से देते हैं। इसलिए हमको उनके प्रति ग्रैटिट्यूड करने की बहुत सख्त जरूरत है। प्लीज कंटिन्यू। जी मैम। Every one of us has received help, support, or guidance from other people at particular times in our life when we needed it most. Sometimes another person alters the course of our life through their encouragement, guidance, or just being there at the right time. And then life goes on, and we tend to forget those times when one person touched us or changed our life. Sometimes you don't even realize the impact a person had until well into the future, when you look back on your life and realize that a particular person was pivotal in magically changing the direction of your life for the better. यस। The person, अब क्या बोल रहे हैं कि हम हर इंसान, बिकॉज वी आर नॉट एन आइलैंड, हम लोगों को कभी ना कभी जरूरत हर किसी की पड़ती है। कभी फैमिली मेंबर्स की हो सकती है, कभी फ्रेंड्स हैं, टीचर्स हैं, डॉक्टर्स हैं, नर्सेज हैं, को कईयों की बहुत बार। कभी हम कोई काउंसलर के पास जाते हैं, कुछ भी हो सकता है, कोच है। बहुत तरह के लोगों से हमने कभी ना कभी हेल्प ली है। ठीक है। तो आज हम लोगों को उन लोगों को याद करना है। कभी कभी ये लोग जो हैं हमारी जिंदगी का रुख बदल देते हैं। हम, जैसे हो सकता है कि आप स्कूल में हो, आप अब जैसे 11th 12th में, हम लोगों के टाइम में हम लोग 11th 12th में सब्जेक्ट सिलेक्ट किया करते थे। आई थिंक नाउ इट स्टार्ट्स फ्रॉम क्लास 9 ऑनवर्ड्स, बट 11th 12th में हम लोग सब्जेक्ट सिलेक्ट किया करते थे। तो कई बार हो सकता है कि आपको कोई पर्टिकुलर सब्जेक्ट लेना हो, एंड आपकी टीचर ने बोला नहीं, नहीं आप तो ये वाला मैनेज नहीं कर पाओगे, आई थिंक यू शुड गो इन फॉर दिस सब्जेक्ट एंड दिस इज अ बेटर ऑप्शन फॉर यू। या उन्होंने बोला, वाई आर यू टेकिंग दिस, यू हैव सो मच ऑफ केपेबिलिटी, यू, आई थिंक यू शुड गो इन फॉर दिस, यू विल डू मच मच बेटर इन दिस फील्ड। कोई करियर काउंसलिंग करी आपकी, एंड आपका मतलब पूरा वो लाइफ ही चेंज हो गया। या कई बार होता है कि ना, जब से सपोज कोई एक्टर है, हाँ, अगर आपने पढ़ा होगा, बहुत लोग होते हैं, कोई इंजीनियर्स हैं, वो एक्टिंग में आ जाते हैं एंड दे आर डूइंग वेरी वेल। हाँ, कोई फ्रेंड से मिले या कोई वर्कशॉप अटेंड करी, वहां पे कुछ उनको इंस्पिरेशन मिला कि अरे ठीक है, नाउ मैंने इतने साल ये कर लिया है, नाउ आई थिंक आई कैन ऑल्सो गो इन फॉर एक्टिंग, दैट्स माई पैशन, सो लेट मी गो इन फॉर दैट, एंड ही हैज बिकम वेरी वेरी फेमस नाउ। तो उस तरह से भी इट कैन बी एनीथिंग। कोई वर्कशॉप है तो वहां पे कोई लेक्चरर हो सकते हैं, कोई भी हो सकते हैं, जो आपको हेल्प करते हैं अपनी लाइफ को चेंज करने के लिए फॉर द बेटर। एंड हम अपने लाइफ में आगे बढ़ते जाते हैं, उन लोगों के बारे में सोचना भूल जाते हैं। जब तक कि हमको वापस कोई पुरानी यादें आती है, तब हम उनके बारे में सोचते हैं, तब हमको लगता है अरे वाह, उन्होंने ऐसा बोला था, या मैंने उस शो में ऐसा देखा था, तब मेरी लाइफ को मैंने बदला, मुझको इंस्पिरेशन मिला। आई थिंक हमारे प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी, वो तो इतने लोगों को आजकल इंस्पायर कर रहे हैं कुछ ना कुछ बेटर करने के लिए। तो कई बार हम न्यूज में, या पॉलिटिकल फिगर्स, एक्टर्स, कोई सोशल एक्टिविस्ट, उन लोगों से भी प्रभावित हो जाते हैं। इट कैन बी एनीबडी, डजंट हैव टू बी हमारे ही सारे, खाली जिन लोगों को हम देख पाते हैं या जिनके साथ रह रहे हैं वो ही लोग हों।
इट कैन बी एनीबडी, जिनसे भी आपको इंस्पिरेशन मिलती है। अगर आपको भगवान राम से, भगवान कृष्ण जी से, या जीसस क्राइस्ट से, आपको जिनसे भी इंस्पिरेशन मिल रही है और वो आपको लाइफ को बेटर बनाने में मदद कर रहे हैं, तो आप उनके बारे में आज सोच के उनके प्रति ग्रेटफुल हो सकते हैं। ठीक है, प्लीज कंटिन्यू। Yes. The person may have been a teacher or coach, an uncle, aunt, sibling, grandparent, or any family member. They may have been a doctor, nurse, or best friend. They may have been the person who introduced you to your current partner or to a particular interest that became one of your greatest passions. Maybe they were someone you didn't even know, and they appeared in your life very briefly, performing a random act of kindness that touched you to the core. यस, सपोज आप ट्रेन में या फ्लाइट में जा रहे हैं, कोई आपके बगल में बैठा हुआ है, हाँ, आप उनसे बात करने लग गए, एंड बातों ही बातों में ना कोई ऐसी बात उन्होंने बोल दी जिससे आपको इंस्पिरेशन मिल गया कि मैं ऐसे भी कर सकती हूँ, या मेरी लाइफ में ये भी इस तरह से मैं करूंगी तो मेरी लाइफ ऐसे बेटर हो सकती है। या कोई हो सकते हैं जिन्होंने कि आपको आपके लाइफ पार्टनर से मिलाया हो, ठीक है, वो भी हो सकता है। या हो सकता है कि कोई जैसे मैं जब छोटी थी तो फर्स्ट टाइम मेरी एक चाची जी, मेरे चाचा जी की नई नई शादी हुई, तो मेरी चाची जो आई उन्होंने हम लोगों को पेंटिंग सिखाई। वो घर में रहते थे, हम भी उनके साथ ही रहते थे, उन्होंने हमको पेंटिंग सिखाई, ड्राइंग करना सिखाया, एंड फिर आगे धीरे 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 करके ना वो ड्राइंग एक्चुअली मेरे को बहुत अच्छा लगने लग गया करना। ठीक है, तो इट कैन बी एनीबडी, इट्स नॉट एज इफ पेंटिंग इज मेरा कोई करियर नहीं है, बट आई लाइक डूइंग इट। मैं कभी कभी मतलब कर लेती हूँ उसको, तो उस तरह से यू नो दे इंट्रोड्यूस यू। तो वैसे ही हो सकता है आप स्कूल में हैं, कोई म्यूजिक टीचर हैं, उन्होंने आपको इतने अच्छे से कोई गाना गाना सिखाया या कोई इंस्ट्रूमेंट प्ले करना सिखाया कि वो आपका पैशन बन गया, एंड अब आप उसको प्रोफेशनली करते हैं। तो it can be anything, anybody who changes the course of your life for the better। वो आपको ढूंढना है कि कहाँ पे आपकी जिंदगी बेटर हो रही है। ठीक है, या जैसे कि मैंने पहले भी बोला, मेरी सिस्टर ने मुझे मैजिक बुक से इंट्रोड्यूस कराया था। ओके, एंड मेरे लाइफ में बहुत ज्यादा चेंज आया जब से मैंने मैजिक बुक चेंज कर मतलब फॉलो करना शुरू करी मैं। तो शी हैज बीन पाइवटल इन चेंजिंग द कोर्स ऑफ माय लाइफ, मेकिंग मी अ बेटर पर्सन। तो टुडे आई विल टेक टाइम टू बी ग्रेटफुल टू हर। ठीक है, इस तरह से आपको सोचना है कि आपके जिंदगी में कौन से ऐसे लोग हैं जिन्होंने आपकी मदद करी, आपको सपोर्ट किया, आपको इंस्पायर किया, एंड मेक अ लिस्ट ऑफ दोज पीपल। आज एक असाइनमेंट आपका ये है कि आपको उन लोगों की लिस्ट बनानी है जिन्होंने भी आपको लाइफ में कभी सपोर्ट किया या इंस्पायर किया, आपकी मदद करी, आपकी जिंदगी को बेटर बनाने में आपकी हेल्प करी। ठीक है, प्लीज कंटिन्यू। My grandmother gave me my love for books, cooking, and the countryside. By sharing her love of those things with me, all of them affected and changed the course of my life. Cooking became a passion of mine for over 20 years. My love of books eventually led to me becoming a writer, and my love of the countryside has influenced where I have lived throughout my life. My grandmother also disciplined me with a steel hand to say thank you. At the time, I thought she was just teaching me to be polite. It was only later in my life I realized that teaching me to say the magic words was the greatest gift my grandmother ever gave me. She is not alive anymore, but I continue to be grateful to her for the huge influence she had on the course of my life. Thank you, Grandma. यस, देखिए वो अपने
ग्रैंडमा के बारे में बोल रही हैं कि वो कंट्री साइड में रहती थी, तो वो बहुत बार जाती होंगी उनके पास, उन्होंने उनको खाना बनाना सिखाया और बुक्स पढ़ना बताया, उनको थैंक यू बोलना सिखाया। तो रोंडा बर्न बोल रही हैं कि ये तीनों ही चीजें जो उन्होंने सिखाई, और जहां वो रहती थी वो कंट्री साइड में, मतलब थोड़ा सा खुला खुला एरिया में जहां वो रहती थी, वो उनको भी बहुत पसंद आने लग गया। तो उनकी जिंदगी किस तरह से बदल गई। अब जैसे हम लोग बच्चों को क्या बोलते हैं, थैंक यू बोलो, कोई आपके लिए कुछ करता है थैंक यू बोलो, कोई आपको कुछ देता है थैंक यू बोलो। तो रोंडा बर्न बोली उनकी उनकी ग्रैंडमदर भी उनको वो सिखा रही थी। अब रोंडा बर्न बोली पहले मेरे को इतना समझ में नहीं आया, लेकिन जैसे जैसे वो बड़े होने लगे, उनको उन्होंने सीक्रेट के बारे में समझा, ग्रैटिट्यूड के बारे में समझा, तब उनको समझ में आया कि उनके ग्रैंडमदर ने उनको कितना बढ़िया गिफ्ट दिया है, उनको कितनी अच्छी ये बात सिखाई है, टू ऑलवेज बी ग्रेटफुल इन लाइफ। तो शी इज थैंकिंग हर ग्रैंडमदर हियर। अब हमको आज क्या करना है, लेट्स सी। Today, you are going to think about the magical people who have impacted your life. Find a quiet place alone sometime during the day today. Sit down and think of three extraordinary people who have made a difference in your life. Once you have your three people, work with one person at a time and talk out aloud to each person as though they were present, telling him or her the reasons why you are grateful to them and how they affected the course of your life. Make make sure you do यस, this magic. मीनाक्षी जी एक मिनट। जी, आपको आज क्या करना है, आपकी प्रैक्टिस में आपको अपने लाइफ में तीन ऐसे लोगों को ढूंढना है जिन्होंने कि आपकी जिंदगी को बेटर बनाने में आपकी मदद करी है, आपको कुछ इंस्पिरेशन मिला है, उन्होंने आपकी जिंदगी का मुख मोड़ दिया है। उस तरह से आपको तीन ऐसे लोगों के बारे में सोचना है। अब आपको क्या करना है, आपको इमेजिन करना है जैसे वो व्यक्ति आपके सामने बैठा हुआ है। ओके, ये नहीं कि आप उनके सामने जाके बोल रहे हैं या फोन पे बात कर रहे हैं, वैसा नहीं, आपको इमेजिन करना है। आराम से ना यहाँ पे आधी घंटा का समय लीजिएगा। आधी घंटा जब आपको कोई डिस्टर्ब नहीं करे, आप आराम से अपना कमरा बंद कर लीजिए और इमेजिन करिए जैसे कि फर्स्ट पर्सन जिन्होंने भी, सपोज आपने अपनी मम्मी को चुना है, ठीक है, तो इमेजिन करिए जैसे वो आपके सामने बैठी हुई हैं और आपके मन में जो भी है, जितनी अच्छी बातें कि उन्होंने आपके लिए क्या किया, आपको उनको बोलना है कि थैंक यू सो मच, आपने उस समय मेरी ऐसे मदद करी, आपने मेरे को हेल्प किया, इस तरह से इंस्पायर किया, आज मेरी जिंदगी इतनी बदल गई है, मैं आज इतनी खुश हूं, आई एम सो 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 ग्रेटफुल टू यू। फिर इमीडिएटली सेकंड पर्सन को इमेजिन करिए कि वो आपके सामने बैठे हुए हैं, उनसे भी वैसे ही बात करना है। फिर थर्ड पर्सन से। तो आज का असाइनमेंट हमारा ये है कि हमको तीन लोगों के बारे में सोचना है जिन्होंने हमारी मदद करी है और हमको हमारी लाइफ को बेटर बनाया है, ठीक है, और उनको इमेजिन करना है जैसे वो हमारे सामने बैठे हुए हैं और उनसे बात करनी है। ओके, प्लीज कंटिन्यू। yes. Make sure you do this magical practice with all three people in the one session because it will take your feelings of gratitude to a far deeper level. If you split up this magical practice throughout the day, you will not feel the same depth of gratitude nor receive the magical results. यस, अब Here's an example. रोहतावन बोल रही हैं कि हम लोगों को ये जो हम इमेजिन कर रहे हैं, हम लोगों को तीनों लोगों को एक के बाद एक ही इमेजिन करना है। ये नहीं कि एक को सुबह किया, एक को दोपहर में, एक को रात में, जैसे हमने अपना वो मैजिकल रिलेशनशिप्स वाले चैप्टर में किया था कि एक के बाद एक तीनों की फोटो देख के हमको लिखना था,
उसी तरह से आज एक के बाद एक तीनों लोगों से हमको इमेजिन करना है, हम बात कर रहे हैं, हम स्प्लिट नहीं कर सकते हैं। ये नहीं कि एक को सुबह किया, एक को 2 घंटे बाद, एक को 2 घंटे बाद, नहीं, वैसा नहीं कर सकते। उससे हमारी ग्रैटिट्यूड की जो भावना है, जो फीलिंग है, वो बढ़ जाएगी। और फिर जब तक कि हम वो थर्ड पर्सन तक पहुंचेंगे, हमको उतना वो फीलिंग नहीं आएगा। और जब हम एक के बाद एक तीनों लोगों के बारे में सोचेंगे, उनको ग्रैटिट्यूड करेंगे, बोल के ग्रैटिट्यूड करेंगे, इमेजिन करेंगे वो हमारे सामने बैठे हुए हैं, बहुत लोगों को होगा गूजबम्प्स आ जाएंगे, कईयों के आंख से पानी आने लग जाएगा, गला भर जाएगा। बाय द टाइम वी कम टू द एंड ऑफ द थर्ड पर्सन, वो हम लोगों को इतना ज्यादा ग्रैटिट्यूड की भावना आ जाएगी हमारे अंदर, हम बहुत भाव विभोर हो जाएंगे। मतलब हम बहुत ज्यादा ग्रैटिट्यूड में हो जाएंगे उस समय। ठीक है, बिकॉज हम इमेजिन कर रहे हैं ना कि हम उनको बोल रहे हैं कि उन्होंने हमारी जिंदगी को किस तरह से बदला है, हमारे लाइफ को कैसे पॉजिटिवली इम्पैक्ट किया है। जब हम उनको बार बार ये इस तरह से, और जितना इसमें ना कोई टाइम लिमिट नहीं है, आपको उनसे 5 मिनट बोलना है, 10 मिनट बोलना है, आप जितना टाइम चाहें आप लगा सकते हैं उनसे बात करने के लिए। बस सिर्फ पॉजिटिव और पॉजिटिव बोलना है। ये नहीं कि तुमने मेरे को ऐसे बोला, मैं उधर गई तो थी पर मेरा काम उधर नहीं बना, फिर मैं कहीं और गई ना तो मेरा काम हो गया, नहीं, वैसा नहीं बोलना है। खाली पॉजिटिव बातें बोलनी है, उन्होंने आपकी लाइफ को कैसे पॉजिटिवली इम्पैक्ट किया है और आप उसके लिए कितने ज्यादा ग्रेटफुल हैं। अब रॉन्डाबल एग्जाम्पल दे रही हैं, लेट्स रीड। Yes. Sarha, I want to thank you for the time that you encouraged me to follow my heart. I was lost and confused that day, and your words touched me and lifted me out of despair. Because of what you said, I found the courage to follow my dream and I moved to France to work as an अप्रेंटिस। apprentice chef. I am living my dream and I couldn't be happier. All because of what you said to me that day. Thank you, Sarah. यस, अब देखिए सारा, मैं तुम्हें उस समय के लिए धन्यवाद देना चाहता हूँ जब तुमने मुझे अपने दिल की बात मानने के लिए प्रोत्साहित किया था। मैं उस दिन खो गया था और दुविधा में था। तुम्हारे शब्द मेरे दिल को छू गए और उन्होंने मुझे निराशा से उबार दिया। तुमने जो कहा था उसकी बदौलत मैंने अपने सपने का अनुसरण करने का साहस किया और अप्रेंटिस शेफ के रूप में काम करने के लिए फ्रांस चला गया। मैं आज अपने सपने को पूरी तरह जी रहा हूँ और मैं इस वक्त जितना खुश हूँ उससे अधिक खुश मैं नहीं हो सकता था। और यह सब तुम्हारे उन शब्दों की बदौलत हुआ जो तुमने उस दिन कहे थे। धन्यवाद सारा। देखिए, ये इन्होंने एग्जाम्पल दिया है। आपको आपको किस तरह से बोलना है, आपको क्या, किन शब्दों में आपकी फीलिंग ज्यादा आ रही है, वो आपको देखना है। ठीक है, यहाँ पे क्या बोल रहे हैं, आई वॉज टच्ड, योर वर्ड्स टच्ड मी। टच्ड मी मतलब हमारे दिल को छू गए। ठीक है, ऐसा नहीं कि हमको फिजिकली आके कोई छू गया, हमारे दिल को छू जाना, हमको और ज्यादा, हमको उसके लिए बहुत ज्यादा पॉजिटिव फीलिंग आने लगा। ठीक है, आई वॉज लॉस्ट एंड कंफ्यूज दैट डे एंड योर वर्ड्स टच्ड मी। उन्होंने मेरे को एनकरेजमेंट दिया एंड मैं अपने ड्रीम को फॉलो करने के लिए मैं मोटिवेटेड हो गई। ठीक है, इस तरह से वो बता रही हैं। तो अब आपको देखना है कि आपको किस तरह से बात करनी है। ठीक है, प्लीज सामने जाके, अगर आपने अपनी मम्मी को चुना है तो ये नहीं कि आप उनको फोन पे बता रही हैं या आप उनके सामने जाके बोल रही हैं, नहीं। क्योंकि फिर क्या होगा ना, शायद आप सारा कुछ नहीं बोल पाएंगी। और अगर आप इमेजिन करेंगी कि वो आपके सामने बैठे हुए हैं, तो जितना आपको बोलना है आप बोलते जा सकते हैं, कोई आपको इंटरप्ट नहीं करेगा। ओके, एंड एक के बाद एक तीन लोगों को जब आप बोल रहे हैं, आपके अंदर वो जो फीलिंग आएगी वो बहुत ज्यादा
स्ट्रॉन्ग होगी एंड वो आपके लाइफ में बहुत मैजिक्स को अट्रैक्ट करेगी. दिस इज अ वेरी वेरी पावरफुल प्रैक्टिस अपने लाइफ में, और ऐसे लोगों को अट्रैक्ट करने के लिए जो हमको, हमारे लिए हमेशा खड़े रहे, हमारा साथ देते रहे, पीपल हु ऑलवेज हैव आवर बैक. ठीक है, दिस इज अ, क्योंकि हम लोगों को सबको कभी ना कभी जरूरत होती है लोगों की जो हमारी मदद करें, जो हमारे लिए हमेशा हमारे साथ खड़े रहें, है कि नहीं है? दिस इज अ वेरी वेरी पावरफुल प्रैक्टिस. प्लीज कंटिन्यू. It's very important that you say the reasons why you are grateful. And you can't say too much. Instead, the more you say and the more you feel, the more amazing the results. You will see the magic explode into your life from doing this practice. It numbers among the most powerful acts of gratitude you can ever perform. देखिए क्या बोल रही है रोंडा बर्न. इट इज वन ऑफ द मोस्ट पावरफुल एक्ट्स ऑफ ग्रैटिट्यूड यू कैन एवर परफॉर्म. ये इतनी ज्यादा पावरफुल प्रैक्टिस है, और इसको जितना करेंगे उतना रिजल्ट्स पाएंगे. ये नहीं कि खाली मैंने मम्मी को बोल दिया मम्मी थैंक यू. नहीं, आपको कारण बताना है. जब तक आप कारण, और जितना जितना फीलिंग के साथ वो कारण बताएंगे, आपकी लाइफ में क्या चेंज आया वो बताएंगे, जितना ज्यादा ग्रेटफुल होंगे उतना ज्यादा आपकी लाइफ में मैजिक्स आएगा. ओके, प्लीज कंटिन्यू. If you are not in a position to talk out loud, then you can write down your words to each person and address them as though you are writing a letter. यस. When you अब जो भी 3 लोगों ने आपने चुना है, वो आप बोल भी रहे हैं, और आप 3 ग्रैटिट्यूड लेटर्स भी लिखेंगे आज. ओके, दिस इज एन एक्स्ट्रा असाइनमेंट. बट आप 3 ग्रैटिट्यूड लेटर्स भी लिखेंगे. आपको जो बोलना है वो बोलिए, बट साथ में हम लोग सब कुछ लिख कर भी बोलेंगे. ठीक है, इमेजिन करिए जैसे कि आप उनको पत्र लिख रहे हैं, लेटर लिख रहे हैं, और आपको जो बोलना है आप उस चिट्ठी में लिख सकते हैं. जितना पॉजिटिव बात, जितना ग्रैटिट्यूड आपको जाहिर करना है आप उस लेटर में लिख सकते हैं. बहुत ज्यादा अच्छा लगता है वो लेटर लिख के एंड उनको थैंक करके. ओके, प्लीज कंटिन्यू. when you have completed this practice, you will feel a huge difference in the way that you feel. The evidence of gratitude's power working is always that first and foremost it makes you happy. The secondary evidence of gratitude's power is that you attract wonderful things, and as if all of that was not enough, the happiness you feel after practicing gratitude also attracts more powerful things, which will make you even happier. That's the magic of life, and that's the magical power of gratitude. यस. अब क्या बोल रहे हैं कि जब आप ये प्रैक्टिस खत्म कर लेंगे, जैसे मैंने बोला, आप भाव विभोर हो जाएंगे, इतना ज्यादा अच्छा लगने लगे, इतने ज्यादा ग्रेटफुल फील करेंगे आप कि आपके लाइफ में मैजिक्स आएंगे ही आएंगे. देखिए आपको अच्छा लगेगा, यू विल स्टार्ट फीलिंग हैप्पी, वो एक चीज. एंड क्योंकि आप ग्रैटिट्यूड कर रहे हैं, आप अट्रैक्ट करेंगे अच्छी बातें वो. और क्योंकि आप खुश हैं, वो आपकी खुशी और ज्यादा अच्छी बातों को अट्रैक्ट करेगी. तो आप देखिए कितना पावरफुल प्रैक्टिस है. एक प्रैक्टिस से आप 3 तरह से अच्छी बातें अपने लाइफ में अट्रैक्ट कर रहे हैं. ठीक है, एक तो आप खुश हो रहे हैं, इट्स मेकिंग यू हैप्पी. प्लस द ग्रैटिट्यूड इज अट्रैक्टिंग मोर सर्कमस्टेंसेस टू मेक यू फील ग्रेटफुल. और थर्ड चीज क्या है, जैसे हमने बोला, जब आप पॉजिटिव फीलिंग में होते हैं, जब आप खुश होते हैं, आपको और ऐसी बातें, ऐसी सर्कमस्टेंसेस आप अट्रैक्ट करते हैं जहां आप और खुश फील करेंगे. ठीक है, तो मैजिक ही मैजिक. ये प्रैक्टिस करने से तो इतना मैजिक होता है लाइफ में. बहुत अमेजिंग प्रैक्टिस है, ऑसम प्रैक्टिस. प्लीज कंटिन्यू. Magic practice number 12, magical people who made a difference. Number 1, count your blessings, make a list of 10 blessings, write why you are grateful,
Reread your list, and at the end of each blessing, say thank you, thank you, thank you, and feel as grateful for that blessing as you can. Second, find a quiet place alone sometime during today and make a list of 3 people who made a difference in your life. Third, work through the list one person at a time, and while talking out loud, tell each person the reason why you are grateful for them and exactly how they affected the course of your life. Fourth, just before you go to sleep tonight, hold your magic rock in one hand and say the magic words thank you for the best thing that happened during the day. यस, हम नंबर 1 एंड नंबर 4 हम रोज कर रहे हैं। आज हमको क्या करना है? आज हमको एक लिस्ट बनानी है। ऑल द पीपल हु हैव हेल्प्ड अस, सपोर्टेड अस, इंस्पायर्ड अस, हमको एक लिस्ट बनानी है। उस लिस्ट में से हमको कोई 3 लोगों को चुनना है जिन्होंने हमारे लाइफ में बहुत पॉजिटिव इम्पैक्ट किया है। ठीक है, अब उनको हमको इमेजिन करना है जैसे वो हमको हमारे सामने बैठे हैं, और एक एक करके हमको उन लोगों से बात करनी है। हमको बताना है कि उन्होंने हमारी जिंदगी में को कैसे बदला, कैसे इम्पैक्ट किया, और हमको बहुत ग्रेटफुल होना है। उनको कारण बताना है हम क्यों उनको थैंक यू बोल रहे हैं। ठीक है, ये हमारी आज की प्रैक्टिस है। और एक और असाइनमेंट है कि 3 लोगों के लिए आपको ग्रैटिट्यूड लेटर लिखना है। जरूरी नहीं है यही 3 लोग हों, आप और भी 3 लोगों के लिए लिख सकते हैं, पर आपको ग्रैटिट्यूड लेटर लिखना है। इसमें कोई टाइम की पाबंदी नहीं है, कोई समय की पाबंदी नहीं है कि आपको सुबह करना है, दोपहर में, रात में, आपको जब वक्त मिले आप कर सकते हैं। करना ये है कि आपको तीनों लोगों को एक साथ साइमल्टेन एक के बाद एक करना है, और ग्रैटिट्यूड लेटर भी जब लिखेंगे एक के बाद एक लिखना है, जिससे कि आपकी ग्रैटिट्यूड की भावना और बढ़े। ठीक है, दिस इज द प्रैक्टिस फॉर टुडे। अगर किसी को कुछ नहीं समझ में आया तो पूछ सकते हैं। एवरीथिंग इज क्लियर? मैम एक चीज बताएं कि जैसे कि जिसके लिए हम ग्रेटिट्यूड शो कर रहे हैं, मतलब वो अलाइव हो या नहीं हो, ऐसा उससे उससे कोई फर्क नहीं पड़ता है। मैंने बोला ना, कोई माइथोलॉजिकल क्रीचर भी, जैसे भगवान जी भी हो सकते हैं, भगवान राम की कहानी से आप इंस्पिरेशन ले सकते हैं। आप कोई भी, इट कैन बी, आप कोई मूवी देख रहे हैं, उसका कोई कैरेक्टर से आपको इंस्पिरेशन मिला है, अरे मैं तो ऐसा भी कर सकता हूँ, अरे वाह क्या आइडिया आया मेरे दिमाग में, वैसा भी आप कर सकते हैं। तो इट कैन बी एनीथिंग, उससे फर्क नहीं पड़ता है। ठीक है, सो लेट्स डू अ प्रेयर फॉर द डे। Let's join our hands, close our eyes. आप जिन भी भगवान की पूजा करते हैं, जिनमें श्रद्धा रखते हैं, उनका ध्यान करें और उनको बहुत दिल से थैंक यू बोलें। थैंक यू भगवान जी, बहुत बहुत थैंक यू, अपना हाथ मेरे सिर पे हमेशा बनाए रखने के लिए। भगवान जी, मेरे साथ चलने के लिए, मुझे सही रास्ता दिखाने के लिए थैंक यू। मेरे को काइंड हार्टेड और पॉजिटिव बनाए रखने के लिए थैंक यू। मुझे इतनी क्षमता देने के लिए थैंक यू कि मैं सब में अच्छाई देख सकूं, मैं सबका भला कर सकूं। भगवान जी, इस सृष्टि पर जीवन दान देने के लिए थैंक यू। मनुष्य योनि में जन्म देने के लिए बहुत बहुत थैंक यू। सृष्टि के 5 तत्वों से मेरे को मिलाने के लिए थैंक यू, उनसे मेरी दोस्ती कराने के लिए थैंक यू। इस प्यारी प्यारी ठंडी ठंडी हवा के लिए थैंक यू। सूरज की रोशनी के लिए थैंक यू, उसकी गर्माहट के लिए थैंक यू। भगवान जी, इस विशाल ब्रह्मांड के लिए थैंक यू। भगवान जी, सृष्टि पर पानी देने के लिए थैंक यू। भगवान जी, इस प्यारी धरती माँ के लिए थैंक यू। थैंक यू भगवान जी, इतना प्यार करने वाले, इतने अच्छे माँ बाप देने के लिए थैंक यू, जिन्होंने मेरी हर जरूरत, हर इच्छा को पूरा किया। भगवान जी, इतना प्यार करने वाला, इतना प्यारा जीवन साथी देने के लिए थैंक यू। इतने प्यारे प्यारे बच्चों के लिए थैंक यू। भगवान जी, इतना प्यारा भरा पूरा परिवार देने के लिए थैंक यू।
भगवान जी, इतने अच्छे, इतने ज्ञानी मेंटर्स, टीचर्स को लाने के लिए थैंक यू मेरी जिंदगी में। मेरे लाइफ में इतने अच्छे, इतने प्यारे दोस्तों के लिए थैंक यू। थैंक यू भगवान जी, मेरे परिवारजनों को, दोस्तों को हमेशा हेल्दी और हैप्पी रखने के लिए बहुत बहुत थैंक यू। थैंक यू भगवान जी, बहुत बहुत थैंक यू। मेरे को हर तरह से फिजिकली, मेंटली, इमोशनली हेल्दी और स्ट्रांग बनाए रखने के लिए थैंक यू। भगवान जी, रहने को इतना सुंदर घर देने को थैंक यू, खाने को स्वादिष्ट भोजन देने को थैंक यू, पीने को स्वच्छ निर्मल पानी देने को थैंक यू, पहनने को मन चाहे कपड़े देने को थैंक यू। थैंक यू भगवान जी, रोंडा बर्न के लिए थैंक यू, मैजिक बुक के लिए थैंक यू। थैंक यू भगवान जी, मेरे को सद्बुद्धि देने के लिए थैंक यू, तन की मन की शक्ति देने के लिए थैंक यू, जीवन में शांति देने के लिए थैंक यू, आंखों में सपने देने के लिए थैंक यू, हर तरह की सुख सुविधा देने के लिए थैंक यू, इतनी अच्छी सेहत देने के लिए थैंक यू, इतने प्यारे संबंध देने के लिए थैंक यू, खूब खूब समृद्धि देने के लिए थैंक यू। भगवान जी, इतनी कंफर्टेबल लग्जूरियस जिंदगी देने के लिए बहुत बहुत थैंक यू। मुझको इतना ब्लेस करने के लिए भगवान जी, आपका बहुत बहुत आभार। थैंक यू, थैंक यू, थैंक यू। शुक्रिया, मेहरबानी, धन्यवाद। Let's do our affirmations. हाथ करेंगे हम अबंडेंस पोज में आसमान की तरफ और बहुत दिल से बोलिए, टुडे इज द बेस्ट डे ऑफ माय लाइफ। टुडे इज द बेस्ट डे ऑफ माय लाइफ। I will achieve everything that I strive for today. I will achieve everything achieve that I everything strive for I today. today. I am open and receptive to all the good coming my way. I am open and receptive to all the good coming my way. I attract kind and compassionate people in my life. I attract kind and compassionate people in my life. I am always ready to acknowledge the help of others. I am always ready to acknowledge the help of others. I am loving, lovable, and loved by all. I am loving, lovable, and loved by all. So thank you, thank you, thank you, Bhagwan ji. Thank you so much. Thank you, Meenakshi ji. इतने अच्छे से रीडिंग करने के लिए थैंक यू एवरीबडी, अपना कीमती समय देने के लिए, अपनी प्रैक्टिसेस रेगुलरली करने के लिए थैंक यू सो सो मच। कल Thank हम you, इसी ma'am. वक्त मिलेंगे। कल थोड़ा टाइम एक्स्ट्रा लग सकता है क्लास में, प्लीज मेरे साथ थोड़ा कोऑपरेट करें, ठीक है? थोड़ा कल टाइम लेकर आइए, कल हम थोड़ा एक्सटेंड करेंगे। ओके, थैंक यू, जी मैडम। Thank you, ma'am. Thank you so much. थैंक यू। Ma'am.